अब आप कहती सर आज घबरा गया टीचर थोड़ा आपके सामने, तो हम दूसरी कक्षा में बैठ जाएंगे। पूरे स्कूल में ही सब घबराए जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहा है, तो हम पकड़ लेते हैं वहां पर। तो सर पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती कहाँ कर रहे हैं? आप कहोगे कि हम तो डूबेंगे सनम तुझे भी ले डूबेंगे, ये वाली जो कहावत थी, इंग्लिश ने क्या किया, खुद तो अपना जड़ मजबूत कर नहीं पाई, बच्चों में हिंदी को भी ले डूबी। बट बच्चे प्राइवेट स्कूल को ही क्यों प्रेफर करते हैं? फिर गवर्नमेंट स्कूल्स तो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, तो ईडब्ल्यूएस के बच्चे वहां तो भी पढ़ सकते हैं। मेरे मम्मी पापा ने अगर मुझे डांट रखा है लड़कियों से बात करने के लिए, और मैं जीवन भर डांट खाता आया, तो मैं किसी बच्चे को हाथ में हाथ डाल के स्कूल के अंदर लड़की के साथ कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। Let's welcome with us today Mr. G.K. Mishra ji. Hi sir. Hello ma'am. How are you sir? Absolutely perfect ma'am. So it's a great honor that you're here with us today. आप प्लीज अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में हमें कुछ बताएं। Thank you ma'am. It's a pleasure to be here, and I am from a very humble background, from a village, and started my career long back after pursuing my masters from BHU, and I went on scoring gold medal in physics from there. But then that was something which had nothing to do with my later part of the career, which I couldn't realize at that time. I did physics because I used to love physics, and a lot of pressure from the family about I going in a different direction. Like my dad wanted me to advocate, and somebody wanted me to doctor, and somebody wanted to be some other profession. But then that's because my passion towards physics, I chose none of them, and I came here, Delhi, with the purpose of contributing myself to the cause of education, which started beautifully with I joining as a teacher in APJ Noida. Okay. That was my first school. And then journey continued. As a physics teacher, I went on teaching different schools of Delhi NCR, and I kept realizing while teaching that there is something gap occurring between the learner and the teacher. And in education system, as long as we do not complete this gap, we are actually not doing justice with the teaching learning process. That has brought me to the administration line, because I realized that while continue to teach as a subject physics in a classroom, I might not bring policies which is required. So that thought made me to jump from teaching to administration. But the passion of teaching continued. Even today also I teach. And you're teaching which class background? 11th and 12th. Acha, Yeah, great. physics. And JEE and NEET as well. Amazing, sir. Amazing. Yeah. So, what are your thoughts about CBSE reforms, the education system which is there? आप इतने साल से इस background में हैं. ऑफ लेट मैम जो बदलाव हुए हैं वो कमेंडेबल हैं, और ग्राउंड लेवल पे भी अब वो दिखने लगे हैं. बीइंग अ वेरी एक्सपीरियंस CBSE mentor of SQUAF, as well as in the affiliation body, and as a very experienced content writer, I can tell you that the reforms which CBSE has brought, it is something which is game changer. For example, if I talk about NEP 2020, though it came after 32 long years, but it has completely changed the infrastructure. The overhauling which was required in education system, NEP is doing currently. And followed by NCF, National Curriculum Framework, the two versions for the foundation year as well as for the school education. And SQUAF is another very important documentation which the CBSE is now putting into the whole process of running their schools in CBSE, under CBSE. So the reforms are very good, and something which was required earlier, which I used to feel when I used to teach, that currently as an administrator, I realize that it is happening in the right direction. Okay, sir.
सर हम अभी स्क्वाफ की बात कर रहे थे, तो इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करिए, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, कैसे चलता है सब कुछ अंदर सिस्टम? Ma'am, SQAF stands for School Quality Assessment and Assurance Framework. This is a process which CBSE has launched, and it has been clubbed with the affiliation process. So, if suppose you are running a school currently, you are the owner of the school or the principal of a school, and you want to re-affiliate your school or extend your affiliation or apply for the fresh affiliation in all the three category. In any case, you have to first go through the portal called Saras and fill up the SQAF, and then only you will be allowed to move on to the affiliation portal. That means SQAF is working as a gate, which is a permission for you for being eligible to ask even for the affiliation from the CBSE. If you're not completing the SQAF, you cannot ask even for the affiliation from the CBSE. So now when I talk about what is exactly this SQAF, being the SQAF mentor at the national level, it is a very comprehensive document where there are 7 different domains, and each domains are assuring the school for quality. How? The whole mechanism is written in that SQAF. For example, if I further explain you, there is a domain of leadership. So the school has proper leadership being at the grounded level, and the teachers are being taken care, the trainings are being done, the quality is being maintained, the parental involvement is being ensured, the teacher teaching in the classroom, the quality is being maintained, leadership needs to be checked. Now there are certain parameters on which the leadership needs to be checked through SQAF portal. Whether I am doing certain documentation. This has been done by the board. By board. So that portals are available. So if I am doing certain things, I will click as a tick. Yes, I am doing. And if I'm not doing, I'm not supposed to be ticking. For example, suppose I am as a leader not promoting the training of my teachers. Why? Because I feel that if they go for the training, who will take the class? Now, this is something which generally most of the schools and principals think about. True. That if I send my teachers for the training, who will take the class? Now, this who will take the class is always a problem. We forget that even if they go and take the class and they remain untrained, the output or the process of teaching learning is still question. What is the use of that class when a teacher goes to the class and teacher doesn't know how to cater the heterogeneity sitting in front? Or the challenges now with the Gen Z is posing. Teachers sometimes they are answerless, and therefore kids are losing interest in the classroom. So by training, by promoting training, teachers can be made very updated, and new skills and new education policies, national curriculum framework related different cross-cutting themes can be taught to them, so that when they come back to the class, they become equipped. Now, if I'm doing it, I will do tick. And if I'm not doing, I will not do tick. Suppose I have done tick, but then my intention was actually to impress CBSE. I might do it. Okay, wrong, tick. So there is a process called PQR, Physical Quality Review. Okay. And that PQR check the validity of the school, whether doing rightly, tick, 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 or it is wrongly being tick, tick, tick. Okay, sir. And then? So during the PQR, suppose I am a member of the PQR team. What CBSE does, very interesting. CBSE just use computer with the reserved data and choose 2 principals, experienced principal as a team member to visit the school physically. Inspection. But then generally we don't call inspection because inspection has a fear. I mean, school people generally start fearing कि पता नहीं क्या ही चेक करेंगे आके और परेशान कर देंगे, दुखी कर देंगे. So we generally call it SQA visit. Okay, PQR. So for example, recently I went to a school in Basur, Alwar district. And me and one principal of Raipur, we got assigned this assignment. So she came from Raipur, I went from Faridabad, and we stayed there for 2 days and we checked all the documents which they have ticked. It can be salary of the teacher, it can be classrooms, it can be syllabi, it can be homework. मतलब कोई भी ऐसी गतिविधि जो आप स्कूल में विद्यार्थियों के लिए कर रही हैं, अध्यापकों के लिए कर रही हैं, पूरे सिस्टम के क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट के लिए आप कर रही हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन आपने किया होगा, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग चेक करते हैं.
ये तो होगा डॉक्यूमेंट की बात। अब कई बार डॉक्यूमेंटेशन आपको पता है किसी और तरीके से भी किए जा सकते हैं, तो हम लोग फिजिकल चूंकि वहां अवेलेबल हैं, तो अगर आप कहती हैं कक्षाओं में पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि बच्चों को चांस दिया जाता है बोलने का, तो हम जाके कक्षाओं में बैठ जाएंगे, हम देखेंगे कि आप सचमुच चांस दे रहे हैं या आपने सिर्फ लिख रखा है। ओके। अब आप कहती सर आज घबरा गया टीचर थोड़ा आपके सामने, तो हम दूसरी कक्षा में बैठ जाएंगे। पूरे स्कूल में ही सब घबराए जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहा है, तो हम पकड़ लेते हैं वहां पर। अब पकड़ लेते हैं, अगेन इज नॉट डरावना प्रोसेस। पकड़ लेते हैं का मतलब हमें डाउट होता है कि ये भाई साहब कर भी रहे हैं उन चीजों को जिन्होंने टिक टिक कर रखा है, या सिर्फ कोटा पूरा हो रहा है, जो पहले नहीं था सीबीएसई के अंदर। पहले क्या था, हमने पकड़ लिया तो अब अफिलिएशन जाएगी। अभी हम अगर हमने कुछ कमियां निकाली है तो हम उन्हें रिकमेंड करेंगे कि आपके विद्यालय में ड्यूरिंग द फिजिकल विजिट असेंबली के अंदर क्वालिटी ठीक नहीं रही, एक ही बच्चा बोलता रह गया, एक ही लड़की गाना गाती रह गई, बाकी सब खड़े थे, या कुछ इस तरह की व्यवस्था थी जो बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आड़े हाथ आ सकती है। आप इसे इतने समय में इंप्रूव करने की कोशिश करिए, और ये तरीका है जिससे आप फॉलो करके इंप्रूव कर सकते हैं। सो दिस फीड फॉरवर्ड प्रोसेस जो स्क्वाफ लेकर आई है, I think this is very commendable change with the CBSE has brought. I admire it. ग्रेट सर, कितने स्कूलों में ये पॉजिटिव रहा है और कितने स्कूल नेगेटिवली डिस्प्ले करते हैं? To be very honest मैम, ज्यादातर स्कूल नेगेटिवली ही करते हैं, क्योंकि अभी स्क्वाफ को लेके अवेयरनेस और अवेकनिंग करनी बाकी है। हम कोशिश करते हैं डर खत्म करें। स्कूलों को ये लगता है कि हम अच्छा अच्छा टिक कर देंगे तो जो मेंटर्स आएंगे, क्या पता वो हमारे टिक वाले पे बातचीत करके या पकोड़े खा के या मिठाई खा के चले जाए और कर दें, जैसा कि कई बार हो जाता है। तो अब ज्यादातर अच्छे एक्सपीरियंस लोग जो जाते हैं वो अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हैं, और एथिकली वो ऐसा करते नहीं है। मैं तो कभी नहीं करता, जो है सो है। ग्रेट सर, बट जैसे हमने बात करी एनईपी के बारे में, तो वो सिर्फ पेपर वर्क तक है या स्कूल्स रेडी है उनके लिए? ऐसा नहीं है कि पेपर पर ही है। एनईपी को आए हुए 5 साल हो गए। एनईपी जो डॉक्यूमेंट है 2020 में लॉन्च हुआ था। हाँ, कोरोना काल के बाद चूंकि विद्यालय के काम करने का जो वर्टिकल था थोड़ा सा बदला। चैलेंजेस थे हर विद्यालय के सामने, सरकार के सामने भी चैलेंजेस थे। महामारी के तुरंत बाद उस तरह से सघन शिक्षण पद्धति को तुरंत पटरी पे ले आना एक चैलेंज था। पर हाँ, धीरे धीरे पिछले 3-4 सालों में मैंने देखा है कि अब एनईपी को लेकर कॉन्शियसनेस स्कूलों में बढ़ गया है। एनईपी के लिए ट्रेनिंग ही नहीं हो रही है, टीचर्स ट्रेन होने के बाद जाकर विद्यालयों में एनईपी को फॉलो भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि आपके समय में आई एम वेरी श्योर ऐसा नहीं रहा होगा कि कोई भी सब्जेक्ट लेकर बच्चा पढ़ सकता था। आपको कॉमर्स, हाँ, साइंस वालों को एक सेट ऑफ सब्जेक्ट ऑफर किया जाता था, ह्यूमैनिटीज वालों को एक सेट ऑफ सब्जेक्ट। जैसे कि अगर उस बच्चे ने फिजिक्स ले लिया ह्यूमैनिटी वालों ने, तो उसका गला घोट दिया जाएगा क्योंकि अलाउड ही नहीं था। तो अब उन्होंने सब हार्ड लाइन सेपरेशन जो स्ट्रीम्स के बीच में होते थे, सबसे पहले वो खत्म कर दिया। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो कि स्कूलों में अब हो गया। स्कूलों में पहले अंग्रेजी को लेकर बहुत जोर दिया जाता था। अंग्रेजी शिक्षा। मुझे याद है एक ऐसा स्कूल भी मैं अपनी लाइफ में पढ़ाया हूं जहां पर अंग्रेजी न बोलने पर फाइन लगा दिया जाता था। मेरे ऊपर भी कई बार 150 रुपए की फाइन लगे थे, क्योंकि हमने हिंदी बोल दी और उन्हें 100 रुपए फाइन लगा दी। सर, बड़े ईडब्ल्यूएस के बच्चे होते हैं, वो तो नहीं बोल पाते इंग्लिश। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हुआ क्या, अगर आप अपने समाज का स्ट्रक्चर देखें तो इंग्लिश को लेकर एक ऐसा हुआ किया गया क्रिएट कि अगर इंग्लिश आती है तो उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, या व्यक्तित्व में वो बहुत धनी है, जस्ट बिकॉज वो इंग्लिश बोलता है या इंग्लिश बोलती है। तो प्रेस्टीज के साथ इंग्लिश विषय को जोड़ने की जो एक गलत परंपरा सिर्फ शुरू ही नहीं हुई थी, जड़ कर गई थी, उसको जड़ से एनईपी ने खत्म कर दिया। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अभी ऐसा कोई नहीं कर सकता कि इंग्लिश न बोलने पर फाइन लगा दे, क्योंकि क्षेत्रों के हिसाब से क्षेत्रीय भाषा कंपलसरी कर दी गई है। और 5वीं तक तो कहा गया है कि एक भाषा वो होनी चाहिए जो उस क्षेत्र की है। जैसे तमिलनाडु में तमिल में अगर 5वीं तक शिक्षा दी जा रही है तो दिस इज अलाउड। राजस्थान में, हरियाणा में हिंदी में अलाउड। इंग्लिश भी पढ़ाओ, पर इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज पढ़ाओ। वो लैंग्वेज आ भी सकती है, किसी को नहीं भी आ सकती है, पर हर चीज को इंग्लिश में बोलना, पेरेंट्स ने भी रट लगा दिया कि हमारा बच्चा तो इंग्लिश नहीं बोलता, स्कूल का माहौल इंग्लिश का नहीं है, इंग्लिश का माहौल होना चाहिए। और उस चक्कर में ज्यादा ही सीरियस हो गए मॉडर्न
मॉडर्नाइजेशन को और लेके। आप कहोगे कि हम तो डूबेंगे सनम तुझे भी ले डूबेंगे, ये वाली जो कहावत थी, इंग्लिश ने क्या किया, खुद तो अपना जड़ मजबूत कर नहीं पाई बच्चों में, हिंदी को भी ले डूबी। बच्चों को इवन हिंदी भी नहीं आती आज की डेट में। देखें अगर जो बच्चे इस दौर से गुजरे हैं उनको हिंदी भी ठीक से नहीं आती, ना बोलना आता ना लिखना आता है। मात्राएं तो हमेशा ही गलत होती है। तो ये जो लैंग्वेज को लेके जो चेंजेस दिखे हैं एनईपी में, अगेन समथिंग एडोरेबल। ये अगर एनईपी नहीं आई होती तो संभव नहीं था। ऐसे ही बहुत सारे बदलाव हैं सैलरी के रेगुलेशंस को लेके, टीचर्स के, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। स्कूलों में ठीक सैलरी टीचर्स को नहीं दिए जाते, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से बहुत खुश होकर तो विद्यालय में पढ़ाते नहीं है। और टीचर अगर खुशी नहीं है तो फिर बच्चों को क्या खुश रखेगा। तो इसको लेके भी काम हो रहा है। एक और एनईपी को लेके बहुत अच्छा काम हो रहा है, वो ये कि जो छोटे बच्चे हैं हमारे, बिल्कुल उनको पहले क्या था कि उनको हर सब्जेक्ट पढ़ाने का ना एक कंपटीशन डेवलप हो गया था। अच्छा। हर स्कूल में कंपटीशन चल रहा था कि इनको ईवीएस भी पढ़ाना है, मैथ्स भी पढ़ाना है, साइंस भी साइंस। पढ़ाना है, सब चीज पढ़ाना है। हम्म। और उस चक्कर में बच्चे पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे मुझे नहीं पता, पर पेरेंट्स जरूर पढ़ते थे घर में। तो दो स्कूल चलते थे, एक घर में पेरेंट्स वाला स्कूल और बिल्कुल। एक बच्चों वाला। बच्चों को भी, बच्चे आजकल स्मार्ट हैं, जेनजी, आप भी जेनजी ही हो। ये इन बच्चों को मैं क्या ही बोलूं, बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। जब बच्चों को लगता था मम्मी पापा ही हमारा होमवर्क करे तो अपना होमवर्क करके छोड़ के वो टीवी देखने लगते, टीवी में काम करते थे। हाँ, मम्मी होमवर्क कर देती थी। तो उधर अब मम्मी ही झगड़ा भी कर रहे हैं टीचर से कि आपने क्या होमवर्क दे दिया। बच्चों को कुछ नहीं पता कि कौन सा होमवर्क दिया गया, माँ बहुत परेशान है कि कौन सा होमवर्क दे दिया गया। तो ट्रू। तो ये खत्म किया कैसे कि अब सिर्फ बेसिक लिटरेसी और बेसिक न्यूमरेसी, सिर्फ यही पढ़ाई जाएगी कक्षा 2 तक, अरे वाह। नर्सरी से लेकर 2 तक। अच्छा सर, जैसे एक स्कूल है तो उसके अंदर ईडब्ल्यूएस, क्रीम क्लास, मिडिल क्लास, सारी क्लासेस के बच्चे, फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बच्चे रहते हैं। तो उसपे वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ कोप अप कैसे करते हैं, और स्कूल्स उसमें कितने, क्या उनका योगदान रहता है उसमें? बहुत अच्छा सवाल है मैडम आपका, क्योंकि आरटी के जो अधिनियम है वो प्राइवेट स्कूलों को इस बात के लिए बाध्य करते हैं कि वो एंट्री लेवल पर 25% एडमिशन ईडब्ल्यूएस के बच्चों का करें। अब इसके लिए गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं। हम अपनी मर्जी से एडमिशन किसी को भी बुलाकर नहीं दे सकते। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन ऑफिसर है उसके डीओई के ऑफिस के थ्रू एक लिस्ट जारी की जाती है और उस लिस्ट के आधार पर हमें एडमिशन देने होते हैं। अब अगर वो 25% से कम है तो हम एडमिशन दे सकते हैं, 25 से ज्यादा है तो स्कूल को राइट है, मना कर सकता है एडमिशन। स्कूलों को ये भी अधिकार है कि जो पेपर सबमिट होते हैं उन पेपर की जांच किया जाए। प्राथमिक जांच पर अगर किसी भी पेपर में कमी पाई गई, आधार पे या डेट ऑफ बर्थ पे या फिर आय प्रमाण पत्र पे, तो उस एडमिशन को वो इस आधार पे कि ये पेपर फ्रॉड है हम मना कर सकते हैं। पर मेरा मालाफाइड इंटेंशन भी हो सकता है स्कूल वालों का। इसके लिए अपील की सुविधा उपलब्ध है, वो जाकर ऑफिस में दोबारा अपील कर सकते हैं, हायर ऑफिस में जा सकते हैं कि इस स्कूल ने एडमिशन मना कर दिया। उस पेपर की दोबारा भी जांच हो सकती है। मतलब कहने का, किसी स्कूल के पास एक मोनोपोली नहीं है कि RWS ये RT एडमिशंस को मना कर दे। ये तो हो गया एडमिशन प्रोसेस। इसका मतलब गवर्नमेंट यहां तक तो सफल है कि चाह ले गवर्नमेंट अगर स्कूल को स्ट्रिक्टली, तो स्कूल को लेना ही पड़ेगा एडमिशन। हाँ, अब आती है बात, एक बार जब ये बच्चे एडमिशन ले लेते हैं तब स्कूल की क्या जिम्मेदारी बनती है, यहां से परेशानी शुरू होती है। क्योंकि उन बच्चों को जो इस तबका से बिलोंग करते हैं, जिनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, उनको स्कूल, जो पब्लिक स्कूल्स हैं, उनके जो तरह तरह के एक्टिविटीज हैं, तरह तरह के उसको लेके जो ये पैसे लेते रहते हैं पेरेंट्स से, उसको लेके कई बारी इन बच्चों को वो सुविधाएं देना स्कूल के लिए भारी पड़ता है। अब क्या आप कहेंगे क्या उपाय हो सकता है? या तो स्कूल के पास इस तरह की कोई एक पेडागोजिकल प्रोसेस डेवलप हो जो इन बच्चों को साथ लेकर चले, और पेरेंट्स को बार बार ये एहसास न दिलाया जाए कि हमने एडमिशन तो दे दिया डीओई को कहने से, पर आपका बच्चा गरीब है इसलिए वो अमीर बच्चों के साथ उसी स्कूल में उन तमाम सुविधाओं को एंजॉय नहीं कर सकता।
और वो डिबार्ड है। एनुअल डे है तो एनुअल डे नहीं कर सकता, स्पोर्ट्स इवेंट है स्पोर्ट्स इवेंट नहीं कर सकता, लोहागढ़ फॉर्म जाना है वहां नहीं जा सकता। तो इस तरह से तो उन बच्चों का एडमिशन करके मॉरली उनके हाँ डैमेज। मोरली डाउन, उनका जीवन हमने हेल बना दिया, हम्म। हेवन बनाने के बजाय। तो लेकिन ये स्कूल की जिम्मेदारी है, ओके। और स्कूल कर भी रहे ऐसे, जैसे मेरा भी स्कूल हम्म। कर रहा है इस चीज को। हम लोग प्रमोट करते हैं इस चीज को। और स्कूल अगर नहीं कर रहा है तो अगेन एक विंडो है, पेरेंट्स कंप्लेन कर सकते हैं और स्कूल की ओके। मान्यता रद्द की जा सकती है। बट सर जैसे मेरे दिमाग में एक ये चीज आई है कि हम हमेशा स्कूल को ही ब्लेम नहीं कर सकते या यूनिवर्सिटी को ही ब्लेम नहीं कर सकते कि ईडब्ल्यूएस में मेरे बच्चे को लिया नहीं, या आई थिंक काफी पेरेंट्स या काफी फैमिलीज भी तो इस चीज को फेक कर देती है कि हम लोअर क्लास के हैं, हम बिलो पॉवर्टी लाइन से ही बिल्कुल नीचे हैं। हाँ, बात सही है मैडम। बिल्कुल सही कहा आपने। कई बारी हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं उनका देख के, उनकी हुलिया देख के, उनसे बातें करके हमें ये तो यकीन हो जाता है कि ये एटलीस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तो नहीं होते हैं। पर हम्म। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जब हम उनके पेपर्स की जांच करते हैं तो हम पेपर्स बिल्कुल पाते हैं। अब कोई पेरेंट्स अगर कार से आ रहा है, किसी पेरेंट्स ने अगर आभूषण पहने हैं और उसको फीस देने के लिए स्कूल में पैसे नहीं है, ये बात कैसे यकीन की जा सकती है। हम्म। और जब हम बैकग्राउंड की भी चेकिंग करते हैं, कई बारी ऐसा निकल कर आता है कि उनके बैकग्राउंड में काफी पैसा है, काफी अच्छा। पैसे वाले हैं। वही तो अब पेरेंट्स ये काफी फेक करते तो हैं। ये जो व्यवस्था है, उस पूरी व्यवस्था की वजह से भी जो सही मायने में ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, हम्म। उनका चयन करना विद्यालय की एकमात्र जिम्मेदारी नहीं हो सकती। विद्यालय तो उस डॉक्यूमेंट पे चल रहा है जो डॉक्यूमेंट विद्यालय को सौंप दिया गया। तो उस डॉक्यूमेंट को भरते समय या सौंपते समय जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है, आई थिंक उसकी जांच होनी चाहिए, और उसको फिर इस कैटेगरी से परमानेंटली डिलीट कर देना चाहिए, ताकि आने वाले जीवन में कभी भी वो इस कैटेगरी में अप्लाई ना कर सके। ग्रेट। अच्छा सर, जैसे ये लोग आपस में जब ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी बैठ जाते हैं तो इनमें आपस में भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है? स्वाभाविक सी बात है मैडम। कक्षाओं का माहौल जो होता है, बच्चे आपस में एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। हम्म। आपके घरों में कंपैरिजन होता है, भाई बहन में कंपैरिजन होता है, हस्बैंड वाइफ में कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन सोसाइटी में है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि क्लासरूम में कंपैरिजन ना हो। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि क्लास में कंपैरिजन के साथ साथ टैबू और टैग लाइन बनाकर बच्चे बोलते हैं। वो बच्चों को चुभता है। अगर कोई बच्चा गरीब घर से है और उसको बार बार गरीब गरीब बोला जाएगा तो उसको दुख तो होगा ही। हम्म। वो अगर घर जाकर अपने माँ बाप को बोलता है कि आज हमें इस तरह से टैबू किया गया या इस तरह से किया गया, तो माँ बाप आएंगे स्कूल में बोलने के लिए, स्कूल में लड़ाई होगी। अब ये कोई नहीं चाहता। न तो मैंने अमीर बच्चे को ये सिखाया एज ए स्कूल प्रिंसिपल कि उस गरीब बच्चे को टारगेट करना और उसको टैबू लगा, मैं इसमें हमारे करिकुलम में नहीं है ये। बिल्कुल। पर दुर्भाग्यवश जब भी हम इस तरह के हेट्रोजेनियस ग्रुप को एक साथ बैठाएंगे तो ये होगा ही होगा। और यही वजह है शायद कि इन बच्चों का कॉन्फिडेंस कई बारी बजाय बूस्ट होने के, अप होने के, इनका लूज अप हो कॉन्फिडेंस जाता है। लूज हो जाता है। वेल सेड सर। अच्छा सर, जो गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स रहते हैं, अब हमने इसका थोड़ा एक डिफरेंशिएशन समझ लिया। बट बच्चे प्राइवेट स्कूल को ही क्यों प्रेफर करते हैं? फिर गवर्नमेंट स्कूल्स तो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, तो ईडब्ल्यूएस के बच्चे वहां पे भी पढ़ सकते हैं। अगेन बहुत अच्छा सवाल है मैडम आपका ये, क्योंकि जो सुविधाएं हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में है, उस तरह की सुविधाओं का 10% भी सुविधा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है। बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के अंदर फैन नहीं होते, क्लासरूम के अंदर बेसिक टीचिंग एड्स नहीं होते। हम्म। कई बारी दुर्भाग्यवश वहाँ टॉयलेट की फैसिलिटीज भी नहीं होती, और गर्ल्स या बॉयज वो बेचारे बाहर खुले में जाके शौच करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल की हालत ऐसी क्यों है, ये तो शायद मैं सही व्यक्ति नहीं हूं बताने के लिए, गवर्नमेंट बेहतर बता सकती है। पर मुझे गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखकर एक ख्याल जरूर आता है कि अगर गवर्नमेंट चाह ले तो वो अगर बिजली विभाग के सेक्टर को सुधार सकती है, एविएशन इंडस्ट्री को सुधार सकती है, रेलवे को सुधार सकती है। मुझे याद है वो जमाना भी जब रेलवे में बड़ी दिक्कत चलती थी, लेकिन देखिए किस तरह से क्वालिटी रेलवे में आई है। हम्म। अभी भी कुछ रेलवे स्टेशन हमें भारत में ऐसे दिखते हैं जो किसी एयरपोर्ट जैसे लगते हैं। बिल्कुल। तो अगर गवर्नमेंट चाह ले, प्राइवेटाइजेशन यहाँ हो गई ना। एग्जैक्टली अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाती है, हम्म। तो एक तो ये कि प्लेयर बहुत मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो स्कूल चला रहे हैं
आपने देखा होगा एक चेन स्कूल चलाने का कंसेप्ट है। एग्जैक्टली। बड़े बड़े प्लेयर्स देखिए, वो एक हम्म। स्कूल से संतुष्ट नहीं है, हम्म। अगला चेन ऑफ खोलते हैं, स्कूल्स अगला उनकी चला खोलते हैं, रहे हैं। और अच्छी बात है, स्कूल खोल रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। उनको अगर ये पता चल जाए कि ये गवर्नमेंट स्कूल है जिसको उन्हें अब चलाना है, उनको ले आना है, तो उनका गवर्नमेंट। इंफ्रा भी अच्छा हो सकता है, उनकी एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स, उनका वो, क्योंकि बहुत ऐसे प्राइवेटली आई थिंक जो हमारे जैसे मैं जिन स्कूल में पढ़ी हूँ वहां पर भी हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड आ गया, एलएमएस का सिस्टम आ गया, डिजिटल स्टडीज आ गए। तो आई थिंक अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स को भी प्राइवेटली एक्वायर करवा ले तो भी शायद काफी हद तक गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, और ऐसा एनईपी में प्रोविजन है, क्लियरली तो ये मेंशन नहीं है, क्योंकि इसके लिए एमएचआरडी को एक नई पॉलिसी लानी पड़ेगी कि गवर्नमेंट स्कूल को कैसे प्राइवेटाइजेशन के तहत प्राइवेट कंपनी को दिया जाए। एनईपी में ये मेंशन नहीं है, लेकिन ओके। एनईपी में ये जरूर मेंशन है कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल्स को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया जाए, हम्म। और उस क्लस्टर के अंदर 3 या 4 स्कूल्स आएंगे, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, और सभी को ये जिम्मेदारी दी गई है क्लस्टर के अंदर आने वाले स्कूल को कि आपस में कोलैबोरेट करें। जैसे हम्म। मेरे विद्यालय के अंदर अगर 2 गवर्नमेंट स्कूल आते हैं, मेरे विद्यालय का ग्राउंड मैं ही यूज करता हूं, लेकिन स्कूल बंद होने के बाद दूसरे विद्यालय के बच्चे भी आके वहां खेल सकते हैं। अभी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। हम्म। तो लेकिन मुझे इस पे डाउट है कि ये सफल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फ्री में किसी भी विद्यालय को अपने इस विद्यालय में बुलाकर उनको विद्यालय की इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना हमेशा एक डिफिकल्ट टास्क होता है, बट उसमें आई तरह थिंक तरह के। अगर गवर्नमेंट एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना दे यस, या इसके ऊपर थोड़ा सीरियसली काम करे यस, तो प्रोबेबली ये चीज एक पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं। यस, बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। सर ये जो एसी क्लासरूम्स हैं, एलएमएस सिस्टम है, डिजिटल स्टडीज है, ये कहाँ तक नेसेसिटी है और कहाँ तक बच्चों के लिए लग्जरी है सर? मैडम, बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं आज भी जिनके यहाँ एसी क्लासरूम तो नहीं है, पर ये कहना गलत होगा कि वहाँ शिक्षण पद्धति में कोई बहुत ज़्यादा लो स्तर का काम हो रहा है। मैं अगर आपको अपने विद्यालय का एग्जांपल दूं, आयसर स्कूल फरीदाबाद में बहुत दबाव है पेरेंट्स का कि हमें एसी देना चाहिए, पर 30 साल पुराना स्कूल होने के बावजूद हम लोग एसी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि एसी से एक चीज तो जरूर नुकसान होता है, वो है हमारा क्लाइमेट। और गुड अर्थ फाउंडेशन ने ये सोचा है कि एटलीस्ट एजुकेशन सिस्टम में हम क्लाइमेट को बचाने का एक एजुकेशन दे सकते हैं। हम्म। एक छोटा सा इनिशिएटिव है। इसका मतलब नहीं कि हमारी फीस कम है या हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर खराब है। हम बहुत अच्छे बच्चे हमारे यहाँ निकलते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं, पढ़ाई अच्छी होती है। पर जब स्मार्ट बोर्ड की बात करते हैं और सुविधाओं की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि अब ये नेसेसिटी हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली हम बच्चों को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, बजाय उसी चॉक बोर्ड सिस्टम में जाकर जो पुराने जमाने में होता था। हम इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे रिसोर्सेज ले सकते हैं, और अब जब देर इज अ बज अराउंड अबाउट एआई, एआई। नाउ इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर एनी schools to survive without having a smart board, because AI needs certain devices and smart board is going to play a very vital role in this. So ये कहना कि सारी सुविधाएं लग्जरी है वो गलत होगा, लेकिन एसी जैसी सुविधाएं, डीसी जैसी सुविधाएं ये ना हो अगर, तब भी पढ़ाई हो सकती है। घर में बच्चों के एसी है, इनफैक्ट न एसी होने पर ग्राउंड में जाकर, ग्राउंड में तो एसी नहीं होता किसी भी स्कूल में, और हम्म। बच्चा कैसे हो सकता है कि ग्राउंड में जाए खेले ना? ये कौन सा स्कूल है जहां बच्चा खेलता नहीं है? और होता क्या है, ये ग्राउंड में जाके खेलते हैं, खेल कर आते हैं और फिर तुरंत एसी में जाते हैं, फिर एसी से बाहर जाते हैं, फिर बस में जाते हैं, उसी दौरान इनको कोल्ड या कफ शुरू हो जाता है। हम्म। तो एक तरह से एसी हर जगह न दे पाना हमारी मजबूरी भी है। क्लासरूम में देकर मुझे लगता है सिर्फ एडमिशन अट्रैक्ट करते हैं स्कूल्स, और तो कुछ इससे लाभ होता नहीं बट बाकी नेसेसिटीज भी है। इम्पोर्टेंट है। बाकी नेसेसिटीज इंपॉर्टेंट है। यस। क्योंकि सर बड़े सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो आई थिंक चाहे आप प्राइवेट स्कूल की बात कर लो, गवर्नमेंट तो शायद इसमें आता भी नहीं है, बट प्राइवेट स्कूल्स की बात कर लो उससे भी डबल मंथली ले लेता है। जैसे ₹1,00,000 तो अगर किसी की कुछ टाइम की फीस रहेगी तो वो तो कोचिंग सेंटर एक महीने में ले लेगा। हाँ, और वो जिस तरीके की फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं डिजिटली, दैट स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड्स एंड एवरीथिंग, व्हाइट बोर्ड में उनका पूरा प्रोजेक्टर वगैरह चलता है। और आई थिंक ये, व्हाट इज योर टेक ऑन कोचिंग सेंटर्स वर्सेस जो ये लोग यूज कर रहे हैं I इन think स्कूल्स, the प्राइवेट स्कूल्स? dimension of the coaching center, the aura of the coaching center has adversely affected to the school culture, school environment. मैं खुद इसका विक्टिम रहा हूँ
क्योंकि जब मैं पढ़ाता था उन दिनों, मैं फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं अक्सर देखता था बच्चे क्लास में मेरी नहीं सुन रहे हैं, विद्या मंदिर क्लासेस के हैंडबुक लेके बैठे हुए, कोई फिटजी का लेके बैठा हुआ है, पता नहीं नाम लेना उचित है कि नहीं, पर वो क्या करते थे, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस के आईटी जेई के क्वेश्चंस स्कूल में निकाल रहे होते थे। तो मैं अब उनको अगर अपना कुछ पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई लेवल का, तो मैं परेशान हो जाता था कि मैं इनके उस प्राइवेट कोचिंग क्लासेस का पहले डाउट लूं या उसका लूं। जिस दिन मैं उनके डाउट को मना कर देता था, अगले दिन वो आते नहीं थे स्कूल, कहते थे मिश्रा सर तो हमारे डाउट लेते नहीं है, तो स्कूल जाने का क्या फायदा। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब कोचिंग सेंटर एब्सेंटिज्म, ज्यादा इसका इम्पोर्टेंट मतलब है। एब्सेंटिज्म प्रमोट हुआ। उनको लगता है कि स्कूल जाने का क्या फायदा अगर स्कूल में हमारे कोचिंग सेंटर। और एक बात तो सच भी है, अगर किसी बच्चे ने जेई और नीट टारगेट बनाया है और स्कूल अगर उसको जेई और नीट क्वालिफाई करने में मदद नहीं कर रहा है, मुझे समझाइए बच्चा स्कूल जाएगा क्यों। क्योंकि जेई और नीट का एक ही चांस है उसके लिए क्लियर करने का। वो ड्रॉप आउट करके बार बार तो जेई नीट की तैयारी नहीं कर सकता, कैरियर में प्रेशर बढ़ने लगता है, और इस बात की ट्रू। क्या गारंटी है कि इस साल नहीं सेलेक्ट हुआ तो अगले साल सेलेक्ट ही हो जाएगा। पेरेंट्स भी बिल्कुल। परेशान। हाँ जी। तो हुआ क्या कि कोचिंग क्लासेस को बाय डिफॉल्ट प्रमोशन मिलता गया और स्कूल्स इस गिरफ्त में आते गए। तो सर फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि कोचिंग सेंटर्स में जो भी पढ़ाई होती है, जो भी एक तरीके से, जिस तरीके से पढ़ाई होती है, क्या हमें वो स्कूलों में भी लागू कर देना चाहिए? मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ऐसा हो जाए तो शायद जो गैप इस समय हम देख पा रहे हैं कोचिंग सेंटर के स्टैंडर्ड को लेके और पब्लिक स्कूल या स्कूलों को लेके, उस गैप को बहुत आसानी से, उस खामिये को बहुत आसानी से भरा जा सकता है। और इसके लिए यही सरकार, जो सरकार इस गैप को अलाउ कर रही है फ्लरिश होने के लिए, यही सरकार जिम्मेदार होगी। अगर वो चाह ले तो वो इस गैप को खत्म कर सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आज भी जो बहुत अच्छे प्रोफेसर्स या टीचर्स हैं, जो बीटेक क्वालिफाई करके बच्चे, यंग बच्चे निकलते हैं, बजाय वो इंजीनियर बनने के जिसके लिए उन्होंने बीटेक किया, वो कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। कोटा चले जाएंगे और कहीं और चले जाएंगे जहां पर उनको 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ, क्योंकि उनको पता है कि किसी भी स्टार्टअप में या किसी भी इंजीनियरिंग जॉब में शुरू शुरू में इतनी सैलरी मिलने वाली है नहीं, लेकिन कोचिंग में मिलने लगती है। तो हमने क्या किया, हमने एक इंजीनियर को उधर लगा दिया। अब वो वहां ऑब्वियसली कोचिंग क्लास में जाएंगे पढ़ाने, तो चूंकि उनका कंसेप्ट या बीटेक है, कंटेंट डिलीवरी वगैरह सब बहुत अच्छी है, इसलिए वो कोचिंग क्लास में उन बच्चों के जेई लेवल के या नीट लेवल के प्रॉब्लम्स को ढंग से सॉल्व कर लेते हैं। अब स्कूलों में आ जाइए। स्कूल में जनरली दुर्भाग्यवश वही टीचर्स काम कर रहे होते जिनका फर्स्ट प्लेस पे टीचिंग प्रोफेशन नहीं था जब वो पढ़ाई कर रहे थे। मतलब उन्होंने सोचा नहीं था कि मतलब कहीं ना कुछ बन पाए तो टीचर बन जाए। ये जो एक दयनीय स्थिति है स्कूलों की, इसकी वजह से क्या है, न तो उन्हें वो सैलरी मिल रही है जो वो डिजर्व करते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं, डिजर्व का क्योंकि क्या। डिजर्व में नहीं पा हाँ, पाएंगे। पर क्वालिटी जो वो दे पाते हैं स्कूलों में, वो नहीं दे पाते ठीक से, तो बच्चे कोचिंग की तरफ जाएंगे। तो अगर हम इस गैप को खत्म करना चाहते हैं तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है, स्कूल के अंदर क्वालिटेटिव इंडक्शन होना चाहिए टीचर्स का। उनकी सैलरी भी वही होनी चाहिए जो जनरली कोचिंग में होती है। अच्छे टीचर्स सब स्कूल में भी आ सकते हैं, वहां भी आ सकते हैं कि उनको वही सैलरी मिल रही है। और बच्चे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्कूल छोड़कर वो कोचिंग में जाएं। क्यों? क्योंकि स्कूल में सिर्फ टीचिंग के अलावा उनको पढ़ाई के साथ साथ खेलने को भी मिल रहा है, परफॉर्मिंग आर्ट भी मिल रहा है, उनके वो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर दोस्त भी मिल रहे हैं जो उनका मन भी बहलाते रहते हैं, इमोशनली उनको खुश रखते हैं। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है स्कूल का, इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है कोचिंग कंसेप्ट, बहुत प्यार से हो सकता है ये। तो सर क्या कोचिंग सेंटर का बिजनेस ड्रॉप डाउन नहीं हो मुझे जाएगा? ऐसा लगता है गवर्नमेंट अपने एक तीर से कई निशाने कर सकती है, और करना भी चाहिए। करना भी चाहिए। अच्छा सर, जो टीचर्स रहते हैं, चाहे हम कोचिंग सेंटर्स की बात करें, गवर्नमेंट या पब्लिक, किसी भी स्कूल की बात करें, तो उनका किस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है? चाहे पे स्ट्रक्चर में हो गया या डिलीवरी जो वो आउटपुट देते हैं अपना नॉलेज, उसमें हो गया। बहुत अच्छा सवाल है मैडम आपका। फिर से आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मेरे से, सवाल बहुत अच्छा पूछती हैं आप। तो थैंक यू। हुआ क्या कि कोचिंग क्लासेस और स्कूल, प्राइवेट और गवर्नमेंट, इनकी जो सैलरी का स्ट्रक्चर था, ये कालांतर में बहुत ज़्यादा गैप हो गया इनमें। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि तीनों जगह के टीचर्स की क्वालिटी अलग अलग हो गई। जो बहुत अच्छी सैलरी वाले टीचर्स हैं, लाखों में कमाना चाहते हैं, वो कोचिंग क्लासेस में चले गए। ओके।
और गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स आ तो जाते हैं, अच्छी सैलरी भी उनको मिलती है, सिलेक्शन के थ्रू ही आते हैं, प्रॉपर तरीके से आते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, उनका नॉलेज कई बार गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों का प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, केवी के जो टीचर्स है उनका जो कोसेंट है, नॉलेज कोसेंट है, वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होता है। यही वजह है ज्यादातर कमेटियां जो बनती हैं सरकार की एजुकेशन रिफॉर्म में, उसमें केवी के टीचर यही वाले जरूर होते टीचर्स हैं। रहते हैं। मैं खुद जानता हूं, ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं केवी के। पर उस ज्ञान का फायदा क्या मैडम? आप उनको लगा देती हैं कभी इलेक्शन के काम में, कभी आप मुंशी बना देती हैं, कभी आप उन्हें आई थिंक इसीलिए उनकी क्लर्क सैलरी बना इन सब देती हैं। बेसिस पे डिपेंड तो करती या है। तो उनसे आप क्लास में पढ़वा लीजिए, हम्म। या फिर आप उनसे दूसरे सरकारी काम करवा लीजिए। तो कितनी पुअर पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि सरकारी स्कूल के टीचरों की सैलरी अच्छे होते हुए भी वो टीचिंग के अलावा बाकी सब काम कर रहे हैं। हम्म। दुर्भाग्य है देश का। और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स, कुछ स्कूलों को छोड़ दो जो एलीट ग्रुप के कुछ स्कूल से जहां पर सैलरी बहुत अच्छी है, उनमें मेरा स्कूल भी आता है, उनके अलावा कई स्कूल ऐसे हैं जो टीचर्स को वो सैलरी नहीं दे रहे हैं जो उनको देना चाहिए एज पर एफिलिएशन बाय लॉ और द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो सर हमने इतने सारे टॉपिक्स पे बात करी रिलेटेड टू आवर एजुकेशन सिस्टम, स्कूल लाइफ, कोचिंग सेंटर्स। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारा कोर तो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स क्या क्या चीजें अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट ईडब्ल्यूएस एंड क्रीम क्लास, स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के बारे में लेट्स थ्रो अ लाइट ऑन दैट। कितना प्रेशर लेते हैं एग्जाम्स का, या रिलेशनशिप्स का, या सुसाइडल आजकल बड़े न्यूज निकल के आ रहे हैं, तो उसका क्या थॉट है आपके? Very rightly said, ma'am. It is actually a cause of worry nowadays, the kind of problems being reported. स्कूल के अंदर मेंटल हेल्थ एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, सिर्फ बच्चों की ही नहीं, इवन टीचर्स की भी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। अब सोचिए, टीचर्स जो बच्चों के साथ जाते हैं, अगर उनका अपना मेंटल हेल्थ ही खराब है तो उनका बच्चों का मेंटल हेल्थ कैसे ठीक करेंगे? पेरेंट्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि आज जो बच्चा है कल वही पेरेंट बनेगा। जी। तो पेरेंट कहीं पैरासूट से तो टपकाए जाते नहीं है। तो पूरी जो कम्युनिटी है जो स्कूल चला रही होती है, तीन लोग मिलकर स्कूल चलाते हैं, बच्चे, टीचर और पेरेंट। इन तीनों लोगों की मेंटल हेल्थ धीरे धीरे डिटोरिएट हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक रिपोर्ट कहती है। चाहे सुसाइडल केस ले लीजिए स्कूलों में, चाहे बच्चों का जो एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है पढ़ाई को लेके, जैसा आपने बिल्कुल राइटली कहा, स्कूल नहीं आना चाहते कुछ बच्चे, फिर भी जबरदस्ती पेरेंट्स उन्हें भेज रहे होते हैं। क्लास में बच्चा नहीं बैठना चाहता, फिर भी टीचर को क्लास में जबरदस्ती बुला के बैठाना, पढ़ाना है। अगर नहीं बैठा तो उसको पनिशमेंट निर्धारित किया जाता है कि तुम क्लास में क्यों नहीं बैठे। नहीं बैठना है क्योंकि हो सकता है वो पढ़ाते ना हो ठीक से, लेकिन वो बोल नहीं सकता खुल के कि आप पढ़ाती नहीं मैडम ठीक से, आपका पढ़ाया कुछ समझ नहीं आता, इसलिए हम आपकी क्लास में बैठेंगे नहीं। इतना बोल दे तब तो उसको टीसी मिल जाए। अब ये क्या, ये ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली समहाउ नॉट हेल्पिंग इन द कोर्स ऑफ इंप्रूविंग द मेंटल हेल्थ। रिलेशनशिप अगर इसमें और डाल दूं मैं, तो आग में घी डालने की बात हो गई। हम इतने ज्यादा जजमेंटल हो गए हैं रिलेशनशिप को लेके। क्यों? क्योंकि 20 साल पहले के लोग अब उस जनरेशन को कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप के मामले में, जिनका 20 साल पहले जब रिलेशनशिप का माहौल था, जहां से पढ़ लिख कर वो आया, तब में और अब में। और ये बच्चे जब आगे 20 साल के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं, 40 साल का गैप है। ये जनरली टीचर्स को ना तो किसी बीएड कोर्स में सिखाया जाता है और ना ही टीचर की कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जिनको तैयार कर रहे हैं, अब वो जनरेशन एक्चुअली उस रिलेशनशिप के पैरामीटर पे खरा नहीं उतरने वाला, जिस रिलेशनशिप के पैरामीटर पे आपके माँ बाप ने, आपके दादा दादी ने आपको तैयार किया। बिल्कुल। पर ये भूल उनसे क्यों हो रही? क्योंकि मैं मैडम पढ़ाऊंगा तो वही जो मैंने पढ़ रखा है। मेरे मम्मी पापा ने अगर मुझे डांट रखा है लड़कियों से बात करने के लिए, और मैं जीवन भर डांट खाता आया, तो मैं किसी बच्चे को हाथ में हाथ डाल के स्कूल के अंदर लड़की के साथ कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? मैं तो उसका स्टाफ रूम में भी चर्चा करूंगा और प्रिंसिपल को भी बताऊंगा और गॉसिप करूंगा। हो सकेगा अगर माइक मिल जाए तो मैं ग्राउंड में अनाउंस भी कर दूंगा। इस तरह की हालत हो गई। नाउ सी हाउ द चाइल्ड इज गोइंग टू फील एज फार एज द यू नो प्रेशराइजिंग द चाइल्ड अबाउट सर्टेन थिंग्स विद द चाइल्ड डिजर्व। और भी एक और बात है सर, यूजुअली आई थिंक बुली भी करना, बॉडी शेमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल। है ना? आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बिल्कुल मैम। तो सर आपका, आपके अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत आसान सोल्यूशन है मैम, लोग करना नहीं चाहते।
मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन ये है कि हमें बच्चों को फ्री कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब तक हमारे मन में ये डर बना रहेगा हम्म, कि हमारा बच्चा ये कर लेगा, हमारा बच्चा वो कर लेगा, अल्टीमेटली बच्चा कर भी वही रहा है जिसका डर बना है। अगर उदाहरण तौर पर समझाओ, बहुत सारे पेरेंट्स आज के डेट में मोबाइल को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। हम्म, उन्हीं पेरेंट्स से पूछा जाए तो क्या आपकी चिंता की वजह से आपका बच्चा मोबाइल यूज करना बंद कर दिया? कहेंगे ना, बल्कि हमारी चिंता और बढ़ गई क्योंकि वो चोरी चोरी यूज करने लगा। इसी तरह से विद्यालयों में क्या स्थिति है, विद्यालय के अंदर टीचर्स का कई बार फोकस बैग चेक करके, मोबाइल चेक करके या उनकी उन तमाम चीजों को चेक करने को लगा रहता है जो बच्चा जनरली छिपाता है। हम्म, बच्चा छिपाना सीख लिया आपके इस प्रोसेस से, चोरी सीख लिया। आपको इस बात की चिंता नहीं है कि जिंदगी के दो इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वर्स्ट हैबिट बच्चा डेवलप कर लिया आपके इस पेडागोजी की वजह से, छुपाना, झूठ बोलना। और हम उसे प्रमोट होने देते हैं हम्म, जबकि फायदा कुछ नहीं होता। अब आप कहेंगे सर फ्री करने से क्या फायदा होगा? फ्री करने से ये होगा, बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसीजन लेना धीरे धीरे आएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उन बच्चे को हम हर उस चीज के लिए फ्री कर दें जो कि लीगली ठीक नहीं है या जो समाज के हिसाब से ठीक नहीं है। पर मोबाइल यूज करना कौन से समाज के हिसाब से ठीक नहीं, मुझे बताइए। बट सर मोबाइल स्कूल्स में और कॉलेजेस में जब एआई को प्रमोट किया जाता है तो फिर जब वहां पे हमारे पास फोन्स नहीं है, टैब्स नहीं है, कंप्यूटर लैब्स में भी बहुत छोटे से कंप्यूटर लैब्स है, लिमिटेड कंप्यूटर्स हैं, वहां पे सब तो जा नहीं सकते। तो आई थिंक योर पॉइंट कैन रिलेट टू दिस आल्सो, जब मैम, स्कूल्स सो कॉलेजेस में राइटली है। पुट बाय यू, there is a buzz around about AI. हम्म, You tell me, how can AI be integrated and implemented in schools without allowing the डिवाइसेस। mobile phone or devices? मोबाइल नहीं करोगे, लैपटॉप करोगे, टैबलेट करोगे, कौन पर सा अलाउड तो ऐसा? कुछ भी नहीं है ना। अब करना तो पड़ेगा ना, बिल्कुल। बिना उसके आप पढ़ाओगे कैसे? हम्म, अच्छा, वही बच्चा जो स्कूल में अलाउड नहीं होता वो घर जाके यूज कर रहा होता है, ट्यूशन में यूज कर रहा होता है। हम्म, अगर हम एक और उदाहरण दें जो कि शायद हम लोगों को पूरे मेंटल हेल्थ को समझने में बहुत मदद करेगी। कई बार ऐसा हो रहा होता है कि मैं आपको उन्हीं चीजों के लिए टोक रहा होता हूं जो मेरे पास खुद पे कंट्रोल नहीं है। जैसे मैं मोबाइल चोरी चोरी अगर चलाता हूं, हम्म, सपोज करिए, तो मैं शिक्षा दे रहा होता हूं लोगों को कि मोबाइल चोरी से नहीं चलाना है। तो ये जो एक सूडो एजुकेशन का कंसेप्ट है ये भी गलत है। पेरेंट्स भी मोबाइल यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूं एज ए प्रिंसिपल। हम्म, कई बार ऐसा होता है कुछ मोबाइल में हमें देखनी होती है जो मैं सबके सामने खोल के नहीं देख सकता। हम्म, तो मैं क्या बर्बाद हो गया? मैंने मतलब मेरी जिंदगी में तबाही आ गई। जब मैं एडल्ट हूं, मेरे लिए कुछ ऐसी चीज अलाउड है, तो हम क्यों ना बच्चों को भी फ्री करें और उनको ही कहें कि हर चीज की एक उम्र होती है। ये रहा डिवाइस, इस डिवाइस के ये आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन। सो गिव देम द एजुकेशन rather than forcing them not to use something which has been invented हम्म, scientifically for that particular use. इसी तरह का डर है मैम क्लास में बैठने का। सोचिए, इमेजिन करिए, आपको मजा आएगा इस बात को सुनकर। क्लास में बच्चों को बैठाना ही क्यों है? उनको फ्री कर दीजिए ना। क्लासेस लगी हुई हैं, टीचर क्लास में बैठा हुआ है, बच्चे फ्री टहल रहे हैं, एजुकेशन बट रहा है, जहां जिसको जाके बैठना है बैठ जाए। आपको मिश्रा जी की क्लास में मजा नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपको किसी टीचर का डांस क्लास सीखना, आप डांस जाके सीखेंगे ना। हम्म, आपको जबरदस्ती मिश्रा जी की क्लास में क्यों बैठाया जाए? जो आपका मन है वो सीखिए। तो इस तरह की व्यवस्था की बहुत जरूरत है कि द फ्रीडम एंड द विजडम should be integrated to develop a pedagogical process and the timetable हम्म, which goes hand in hand in the school system. तो सर पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती कहाँ कर रहे वैसे तो मैम बहुत जगह गलतियां हो रही हैं पेरेंट से, क्योंकि पेरेंटिंग किसी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हैं? हम लोग, मैं जैसे पेरेंट हूँ, मुझे तो पेरेंटिंग नाम की कोई ऐसी पढ़ाई हमने की नहीं अपनी लाइफ में, और मेरे बच्चे भी हो गए। तो ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे ही हैं जो अपने अनुभव के आधार पे अपने बच्चे की पेरेंटिंग कर रहे होते हैं। हम्म, पेरेंटिंग इसलिए एक नया वर्टिकल एनईपी में होकर आया है। सही पेरेंटिंग क्या होना चाहिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। आप बच्चे को उसके इंक्लिनेशन या उसके इच्छा को पहचानने में मदद करें, आप सुविधाएं मुहैया कराएं। वो उन सुविधाओं को खेलते खेलते, गाते गाते, एंजॉय करते करते इस तरह से यूज करेगा जब, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का इंक्लिनेशन किधर है। हम्म, और
अगर बच्चे का इंक्लिनेशन आपको पता चल गया, आजकल ऐसे बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं मार्केट में जो डिजिटली काफी स्ट्रांगली बिल्डअप टेस्ट है। उन टेस्ट के माध्यम से आप उनके अर्ली इंक्लिनेशन को उनके कैरियर चॉइस बनाने में बहुत बेहतरीन मदद करा सकती है। तो ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आई थिंक स्कूलों को भी प्रमोट करना चाहिए और पेरेंट को भी करना चाहिए। सो राइटली सेड। आई थिंक बहुत कम ऐसे इंडिया में बहुत साइकोलॉजिकल टेस्ट्स हैं जो लॉजिकल रीजनिंग्स डायग्रामेटिक फॉर्म्स पे बेस्ड हैं। पैराग्राफ लिख दिया, इसका आंसर बता दो, या ट्रिग्नोमेट्री के सम्स दे दिए, प्रॉफिट लॉस के सम्स दे दिए, उसके बेसिस पे बच्चे की आईक्यू टेस्ट हो रही है, या उसे आगे सीयूईटी में अगर क्रैक करना है या आगे किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। थिंक ये लॉजिकल रीजनिंग के 10-12 क्वेश्चन दे देते हैं, उस पे जज करते हैं। हम्म। सो व्हाट पर आर योर थॉट्स पर ऑन दैट? मैम दुर्भाग्यवश इस तरह के टेस्ट से कभी कैरियर का इंक्लिनेशन नहीं पता चल सकता, क्योंकि आप फिर से वही गलती कर रही है जो जनरली हम करते हैं। उनका बच्चों का मैथ्स या इस तरह से रटा रटाया चीजें जो वो अच्छा कर लेते हैं, इसके आधार पे आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि बच्चा एक अच्छा म्यूजिशियन भी बन सकता है। सो ट्रू। और यही वजह है कि कई बार बच्चे डिग्रियां लेके किसी एक प्रोफेशन में ज्वाइन भी कर लेते हैं, फिर वहां से रिजाइन करके छोड़ के किसी दूसरे प्रोफेशन की तरफ जाने लगते हैं कैरियर में। अपना टाइम पूरा ही उनका वेस्ट हो जाता है बेसिकली। तो एज अर्ली एज पॉसिबल आई थिंक स्कूलों में इस बात की बहुत आवश्यकता है कि बच्चों को नाइन्थ क्लास के पहले ही एट तक आते आते उनकी साइकोमेट्रिक टेस्ट का कुछ इस तरह से सिलसिला बनाया जाए, हर साल उनके इंक्लिनेशन को मैप किया जाए। आठवीं में उनका इंक्लिनेशन क्या था, क्योंकि इंक्लिनेशन भी वेरी करता है साल दर साल। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी प्रेफरेंसेस भी बदलती नाइन्थ हैं। में क्या है इनका इंक्लिनेशन, तो इस तरह से एक एनालिटिकल अगर कुछ एनालिसिस हो, हम्म, जो मैं जानता हूं बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कर रही हैं डिजिटली हम्म, इक्विप्ड, तो उनके साइकोमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू हम बता सकते हैं पेरेंट्स को कि आपका बच्चा इन 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 कैरियर्स में अच्छा कर सकता है। तो हम्म, एक तो वो डार्क साइड जो है पेरेंट्स के लिए, बच्चे के लिए, वो रिमूव होगा। बिल्कुल। दूसरा, अगर बच्चा ट्वेल्थ पास करके यही नहीं समझ पाया कि किस कैरियर में वो बेहतर कर सकता है, उसके उस डिग्री का फायदा क्या जो ट्वेल्थ के बाद उसको मिलती है। हम्म, सीवी तक बच्चे नहीं बना पाते, इसकी भी बहुत आवश्यकता है कि बच्चे स्कूल में बाहर निकलते निकलते अपनी सीवी किस तरह से बेहतरीन बना सकते हैं जिसमें वो सारी चीजें लिख सके, उसकी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए आई थिंक बच्चों सर को। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उनको लगता है कि मैं स्कूल में हूँ, 11th में हूँ, 12th में हूँ, अभी मुझे सीवी की क्या जरूरत है, बाद में देखा जाएगा। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं मैम, स्कूल में इस तरह से तो स्कूल में उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, फिर हर चीज कॉलेज में होगा तो स्कूल जा ही क्यों रहे हैं फिर। सो आई थिंक सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जैसे साइकोमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं बच्चे का बहुत एक अर्ली स्टेज पे, जैसे कि हमने बात करी कि 6-7 के बच्चे मतलब स्कूल लेवल के बच्चों को एक करियर उनका प्रिडिक्शन एटलीस्ट मिल जाए कि मेरा फ्यूचर फोरकास्ट ऐसा हो सकता है। तो उसी तरीके से आई थिंक कि जो सीवी है वो स्कूल्स में भी अप्लाई हो जानी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। और तो नॉलेज देना चाहिए। इसके लिए स्कूलों को प्रयास करना चाहिए। आज भी स्कूल नाइन्थ टेंथ 11 ट्वेल्थ में कंप्लीटली कोर टीचिंग में लगे हुए हैं, और हम्म, वही कोर टीचिंग जो बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि किसी न किसी पैरेलल सोर्स से वो उसकी पढ़ाई पहले से ही कर रहे होते हैं। इमेजिन करिए, बच्चा बाहर भी कोचिंग में भी वही चीज पढ़ रहा है, स्कूल टीचर भी वही पढ़ा रहा होता है, तो बच्चे कई बार स्कूल की टीचिंग को इसलिए बोरिंग डिक्लेयर करते हैं क्योंकि तो पढ़ लिया उन्होंने। तो हम्म, स्कूल स्कूल क्या करे फिर, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है स्कूल के कि हम बच्चों को कोचिंग ना जाने दें, वो हम्म, तो जाएंगे जाएंगे। बिल्कुल। स्कूल में बच्चों को फिर इसका मतलब हमें उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, उनके स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की तरफ, उनका मेंटल हेल्थ ठीक हो, उनका जो एक साइको एनालिसिस हो, जो कि मैं अभी बोल रहा था, साइको एनालिसिस बहुत जरूरी है बच्चों का होना चाहिए, ताकि उनकी एक एक ना एक रुचि डेवलप जिस तरफ हो रही है वो हाँ, रुचि हम समझ सके, और उस रुचि को समझने के बाद पेरेंट्स को 1-to-1 बुलाकर अगर हम काउंसलिंग करें और पेरेंट्स को हम बता सकें उस एनालिसिस पे ये आपका बच्चा है, इस तरह का रिजल्ट है, पेरेंट कभी भी ये भूल नहीं करेगा। जानबूझकर कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के कैरियर जैसे संजीदे मामले में गलती नहीं करता, तो पेरेंट को ब्लेम करना यहां ठीक नहीं होगा। हमारे सिस्टम में आई थिंक पेरेंट्स का प्रॉपर रोप इन होना चाहिए, और स्कूल इस चीज को समझे कि पेरेंट्स को भी हमें गाइड करने की जरूरत है इस राइट पेरेंटिंग के लिए। हम ये नहीं सोच के बैठ सकते कि पेरेंट को तो आता है। बट सर मैंने देखा है बड़े सारे ना जो एप्लीकेशंस हैं या वेब एप्लीकेशंस हैं, बड़े एआई भी जैसे आपको हेल्प कर देता है सीवी बनाने में। आपको एक टेम्पलेट दे देगा या आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रॉम्प्ट कर दो और वो आपको दे देगा, आप सीवी बन जाएगी।
पर बड़ी जगहों पर आई थिंक जब हम जॉब्स लेने के लिए जाते हैं, यही बच्चे हैं जो स्कूल से निकल के कॉलेज में सीवी बनाएंगे, ट्रेनिंग्स लेंगे और फिर किसी जगह जॉब पे लगेंगे। वहां इन्हें बड़ी दिक्कत आ जाती है। मैडम मैं यही कहूंगा कि जैसे मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ टीचर्स के इंडक्शन के दौरान, एआई के द्वारा बनाया हुआ सीवी और बच्चे के द्वारा सीवी मुझे बहुत समय नहीं लगता फर्क करने में। और हम्म। आप भी जानती होंगी कि एआई, चैट जीपीटी, इनके के द्वारा जो चीजें दी जाती है, देखिए ये है क्या, ये डेटा जो आप देती हैं उस डेटा के इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ये एक मटेरियल बनाकर दे देता है। हम्म। हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये चैट जीपीटी ने बनाया है या हमारे महानुभाव ने बनाया है जिनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आई थिंक चैट जीपीटी अपनी जगह पे हेल्प करेगा, मैं मानता हूं, हो सकता है बहुत समय बचाए, लेकिन सीवी जैसे मामले में या हमें कोई अगर अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है या कहीं हमें विजडम अपनी रखनी है, वहां कितना भी एआई डेवलप कर ले, वो कभी भी ह्यूमन इंटेलेक्ट को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। अमेजिंग सर, सुन के इतना अच्छा लगा। एंड आई थिंक कि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऑल्सो, गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स काफी इन सब चीजों से रिलेट कर पाएंगे। वंडरफुल insights that you've given us. Thank you so much for giving your valuable time and hope to see you really soon, sir. Thank you so much. It has been really pleasure talking here and expressing my views. Honestly, I enjoyed the whole session. Thank, धन्यवाद बहुत बहुत आपको। thank you, sir.